Hi everyone, this is Sakshi Charadia, and in today's video, I will be talking about a very important topic which has become the talk of the town, that is the recent crisis of the Silicon Valley Bank. There are rumors and people are saying कि ये सबसे बड़ा banking collapse है since the 2008 वाला crisis. Well, before jumping to any conclusions, we'll first have to understand that क्या है ये Silicon Valley Bank और क्या ये काम करता है और क्यों ये important है, why did it collapse and क्या इसका impact पड़ने वाला है इंडिया पे. I will be covering all this in this video and I'll try to make it as simple as possible so that everyone could understand. So for the people who are new to my channel, please do subscribe to it. I make content on all finance related topics, legal topics, corporate law related topics and topics that are relevant to all professionals including CS, CA, CMA and lawyers. So let's begin and decode this crisis. So let's just first understand that what actually happened and what is the fuss all about. So the Silicon Valley Bank SVB, which is considered the largest bank for startups, जो अपने fund startups को lend करता है, it has been declared defunct. वो बंद हो चुका है. This news came out on Friday, that was the 10th of March. So a few days back, उसकी जो CEO है ग्रेग बेकर, उन्होंने अपने शेयर्स वर्थ 3.6 मिलियन US डॉलर्स सेल आउट कर दिए थे and which led to a steep downward trend of 60% in the share price of that company in just one day. So Silicon Valley एक area है in the California state of USA. It is the hub for all startup companies and big tech companies like Apple, Google, Facebook. इन सबके headquarters भी Silicon Valley में है. जस्ट लाइक बैंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ दी सॉफ्टवेयर एंड टेक कंपनीज बैंगलोर में लोकेटेड है. उसी तरह SVB दैट इज़ द सिलिकॉन वैली बैंक जो कि 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था, वो लोकेटेड है सिलिकॉन वैली में. SVB का मेन काम इज़ टू लेंड मनी एंड सपोर्ट टू द स्टार्टअप एंड टेक कंपनीज एंड वी कैन सी दैट इसका हैवी एक्सपोजर है ओनली टू वन सेक्टर. And this has been defunct on 10th of March 2023. कोई भी बैंक जब बंद होता है या डूबता है तो उसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो उसके डिपॉजिटर्स पे आता है, जिन लोगों ने अपना पैसा उस बैंक में डिपॉजिट किया है. It's been said that around $175 billion has been deposited in that bank. What will happen to those customers? Well, वहाँ का एक इंस्टीट्यूशन है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. नाउ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन. यू गाइज मस्ट नो कि अगर इंडिया में कल को कोई बैंक डूब जाता है तो RBI प्रोवाइड्स अस अप टू 5 लाख तक का इंश्योर्ड अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल, मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है तो मेरे को 5 लाख तक का तो इंश्योर्ड अमाउंट मिल जाएगा, बट बाकी 5 लाख आई माइट और माइट नॉट गेट. उसी तरीके से US में ये अमाउंट अप टू 2,50,000 US डॉलर तक रेंज करता है, विच मीन्स कस्टमर विल गेट अप टू 2,50,000 US डॉलर फॉर श्योर. बाकी का इज़ अ रिस्क. जो FDIC है दैट इज़ द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसने सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया है एंड डिपॉजिटर्स का सारा मनी और असेट्स जो है वो एक नए बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया है विच इज़ नोन एज द नेशनल बैंक ऑफ सांता क्लारा. Now this bank has been created for the management of depositors' money. So I hope till now you have understand that actually Silicon Valley Bank क्या है, क्या काम करता है and actually हुआ क्या है. So now let's move on to the next part and understand the reason of this big failure. Now the reason why this bank failed could be twofold. First of all, we could see कि इस बैंक का exposure was काफ़ी limited to only startup and tech companies. एंड वी कुड सी कि कुछ सालों से टेक कंपनीज के स्टॉक्स काफ़ी हिट हुए हैं, दे आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, जिस वजह से उन्होंने बैंक से अपने फंड्स विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिए. द सेकेंड रीजन वुड बी दैट फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर US के सेंट्रल बैंक दैट इज़ द फेड, उसने कॉन्टिन्यूसली इंटरेस्ट रेट हाइक किया है टू कर्ब इन्फ्लेशन. वी कुड ऑल्सो सी कि इंडिया में RBI ने रेपो रेट 4% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है. नाउ एज वी ऑल नो कि ये जो बैंक है ये मोस्टली स्टार्टअप कंपनी और टेक कंपनीज़ को अपना फंड प्रोवाइड करती है एंड जाहिर सी बात है अगर टेक कंपनीज़ ग्रो करेगी तो ये बैंक भी अच्छा परफॉर्म करेगा. एंड दैट इज़ वॉट वॉज हैपनिंग दैट इन द ईयर 2019 to 2020 when the US IT sector was performing good, this bank share price was also performing well. अब जैसे जैसे IT कंपनीज़ ग्रो कर रही थी उसी तरीके से उनके बैंक में डिपॉजिट्स भी ग्रो करने लग गए थे.
in 2017, where the deposits in the bank were 44 billion US dollars. In 2021, those deposits rose to 189 billion US dollars. जब deposits और ज़्यादा grow होने लगे तो बैंक ने लोन देना स्टार्ट किया, but SVB managed to give loan of 66 billion US dollars. बाकी का उन्होंने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया. अब क्योंकि बैंक ज़्यादा लोन रेज कर नहीं पा रही थी, इसलिए दे स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन अदर इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज like treasuries and mortgage bonds to pay interest to their depositors. But by the end of 2021, this number rose to 128 billion US dollars. प्रॉब्लम ये नहीं थी. प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब स्टार्टअप और टेक कंपनीज डाउनफॉल में चले गए. दे स्टार्टेड टू अंडर परफॉर्म और उनकी कैश नीड्स बढ़ गई. Venture capital funding was not an option. That's why they started to withdraw their money from the banks, जो ज़्यादातर SVB में डिपॉजिटेड था. जैसे ही विड्रॉल्स बढ़ने लगे, SVB को अपनी इन्वेस्टमेंट्स लॉसेज में बेचनी पड़ी. बैंक इवन ट्राइड टू रेज एडिशनल फंड्स बट दे फेल टू डू सो. और फाइनली एक बैंक रन पोजीशन क्रिएट हो गई. बैंक रन पोजीशन एक वो पोजीशन होती है जब सारे के सारे डिपॉजिटर्स एक साथ बैंक पहुंच जाते हैं टू विड्रॉ देयर मनी. फाइनली द रेगुलेटर्स वर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू सीज द असेट्स ऑफ SVB ताकि वो डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके. Well, now the final question arises कि इस सब का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. Well, we can sure see a ripple effect because काफ़ी इंडियन स्टार्टअप्स ने अपना पैसा SVB में डिपॉजिट करवाया था. Even during COVID period, जब फंड रेजिंग इश्यूज आ रहे थे स्टार्टअप्स को, they turned to SVB for fundraising. Well, now with the collapse of this biggest bank, there's sure a panic situation created with the Indian startups also. But they have to find new other alternatives. As we all say, don't put all your eggs in just one basket. Well, I hope you all found this video informative and helpful. If so, do like, comment and share with all your friends, family and colleagues. And don't forget to subscribe to my channel for related content. Thank you all for watching. See you again.